السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد قدیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اپنا بلاگ چینل۔ دوستو اس وقت ہم موجود ہیں مدھیہ پردیش کے ضلع جبل پور بڑی مدار ٹیکری قبرستان کے اندر۔ دوستو آج ہے حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ سا مدار العالمین کا عرس مبارک۔ تو سب سے پہلے آپ سبھی کو تہہ دل سے مدار العالمین کے عرس مبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اور ہم جا رہے ہیں بڑی مدار ٹیکری میں جو چلہ مبارک ہے حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ سا مدار کا، تو اس چلے مبارک کی زیارت کراتے ہیں اور چلے مبارک میں جو خادم صاحب ہیں ان سے جانکاری لیں گے اور تھوڑی مختصر سی ہسٹری بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی ہمارے بھانجے وارث محمد وارث صاحب ہیں اور ایک تو شہنشاہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور وارث بھائی ہیں۔ تو بھائی دیکھو یہ ہے راستہ چلے جانے کا۔ یہ بارگاہ کی ہم نے آپ کو زیارت کرا رکھی ہے عرس مبارک میں حضرت انیس الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل اسی چینل پہ ان کے اپنا بلاگ میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہاں سے اوپر چلنا ہے۔ یہاں پر دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ دم مدار بیڑا پار، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی یہ خوبصورت نظارہ ہے۔ اور مدار العالمین کا جب عرس بھرتا ہے تو جتنے بھی چلے ہیں ہندوستان کے اندر یا جہاں جہاں بھی، سبھی چلوں میں جو ہے عرس منایا جاتا ہے۔ مطلب ساری دنیا میں چلہ آپ کا ملے گا اور ساری دنیا میں عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے چلے مبارک سے لے کر اس قبرستان سے لے کر سبھی جانکاری دی گئی ہے مدار العالمین کے۔ ارے ہو گیا بی بی نصیبہ کا بھلا، کہتے ہیں غوث الورا قطب المدار، کہتے ہیں غوث الورا قطب المدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا سدرۃ الاولیاء طیفوریہ مداریہ، قال اللہ تعالی کا زیارت طیبۃ نسلھا ثابت و فرعها فی السماء۔ ہر کرا باسط تمنا دیدن پروردگار، ہر جمع باسط کفانند سزر قطب المدار۔ الہی بحرمت راز و نیاز بندگی حضرت رسالت پناہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی بحرمت راز و نیاز بندگی حضرت امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ الہی بحرمت راز و نیاز بندگی حضرت خواجہ بایزید بستامی عرف طیفور سامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الہی بحرمت راز و نیاز بندگی حضرت سر دفتر اولیاء کبار حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم حضرات، جیسا پوچھا گیا ہے اور واقعی حضور سیدہ بدیع الدین قطب المدار کی چلہ مبارک پر ہم سب حاضر ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اس وغیرہ حضرت سید بدیع الدین احمد ہے۔ آپ کے القاب زندہ شاہ مدار، قطب المدار، مدار العالمین،
मदार जहाँ गरज के बहुत से अलकाब हैं आपके। आपका सजर नसब जो है और बाप के आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयद बदियुद्दीन के वालिद गिरामी सैयद कुतुबुद्दीन अली हलबी के जानिब से चलकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर मौला अली तक मिल जाता है। ये आपके वालिद का और आपकी माँ सैयदा फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला जाके हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मौला अली, इस तरह इस निस्बत से आप 10वीं पुश्त में और हिंदुस्तान में सारे औलिया कराम की जमात के अव्वल अल्लाह ताला की मशीयत ने आपका इंतखाब फरमाया और हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जब भेजा तो खिला के पिला के, और गुजरात का वो मकाम जारी सारी है जिस तख्ते पर आप बैठ के आए थे, वो तख्ता भी मौजूद है समंदर में और उसकी ज़ियारत करते हैं लोग। तो लिहाजा आपको ऐसा खिला पिलाया कि हुजूर सरवर आलम ने कि एक फरिश्ता हाजिर हुआ, बुलाया आपको, आप जब देखा तो एक बर्तन में खीर थी। कहा कि बेटा और आपको अल्लाह चाहता है कि पूरी दुनिया में खिदमत करो, तबलीग करो और तो मुबल्लिग हो, तो ये खाना अल्लाह ने भेजा है, जन्नती खाना है। तो हुजूर ने अपने हाथों से 9 लुक़मे या 14 लुक़मे खीर खिला के कहा कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की आखिरी दम तक भूख की ख्वाहिश न होगी, खाने से तुम बरी उस ज़िम्मा हो गए। फिर पानी आया, एक फरिश्ता लेके आया तो कहा कि आप एक कौसर है बेटा सैयद बदियुद्दीन, और ये पानी जी भर के पी लो। शराब करके आपने पिया। आप कहते हैं कि वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था और शहद से ज़्यादा मीठा था। तो मैंने से फिर उसके बाद से आपको जन्नती लिबास में आया तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लिबास पहनाया, सर पे मामा बांधा और कहा कि मेरे बेटे बदियुद्दीन, अल्लाह का मंशा है तुम तबलीग दीन के लिए और ये तख्त भी तुम्हें इनायत कर किया जा रहा है। तो कहते हैं लोग वो तख्त सुलेमानी था जिसे 42 अब्दाल लेकर उड़ा करते थे। उस पर आप जहाँ जाना होता था और वो दुआए बसमक पढ़ते थे और फौरन वो तख्त हाजिर हो जाता था। आप हुक्म देते थे कि हमें कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, रसिया, चाइना, इंडोनेशिया। गरज के किताबों में आपके तकरीबन 60-65 और मकामात पर आपने खिदमत यानी दुनिया में की है आपने, और हिंदुस्तान का तो चप्पा चप्पा और करिया करिया नगर नगर आपने वो तबलीग की है। 1442 चिल्ले तो आपके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो नहीं हो सके तो अंदाजा कर लो। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि हर बुजुर्ग का उर्स उसी के मकाम पर होता होगा। ये बात मेरी बहुत जिम्मेदारी से आप भी सुनो कि हर बुजुर्ग का जहाँ मदफून है उसी मकाम पर उर्स मनाया जाता है और कहीं नहीं। लेकिन सैयद बदियुद्दीन खुदुल मदार एक ऐसा वली है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बड़ी मदार टेक कब्रिस्तान का चिल्ला है, ऊपर मदार चिल्ला है बड़ा कहते हैं, वहाँ भी उर्स हो रहा है। फिर आगे चढ़ो गढ़ा में भी मदार पाक का चिल्ला है, वहाँ भी उर्स हो रहा है। थोड़ा आप आगे चढ़ो पनागर में भी उर्स हो रहा है, इंदिरा में भी हो रहा है। आज तो पूरा हिंदुस्तान में जहाँ भी जाइए तो आखिर क्या बात है, पता ये चला कि मदार उस वली का नाम है कि जिसे पूरे मुबल्लिग का सर पे सहरा बांध के मेरा का हुजूर सरवे आलम ने कहा बदियुद्दीन, हिंदुस्तान में आप 242 हिजरी में पैदा हुए और 282 में आपका पहला कदम हुआ। आप जो है आप शहर इराक के हलब एक शहर था, वहाँ आप सैयद खानदान में पैदा हुए और अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया था तबलीग के मुबल्लिग के लिए। इसी महजर ने कहा है कि जहाँ जाइए इनके चहले हैं महजर, मदारे जहाँ का सफ़र अल्लाह अल्लाह। आज सारी दुनिया में एकदम दम मदार बेड़ा पार गूंज रहा है, चूँकि ये वली इतनी है, ऐसा है कि हम मोहब्बत ही कर लें इनसे तो हमारे बेड़ा पार हो जाता है। ग्रामी मैं नाचीज़ मोहम्मद ही पूर्णम अती की मदारी हाजिर हूँ और ये सच्चाई है कि ये वो वली है कि जो दिलों की धड़कनों की खबर रखने वाला है। अगर आपको की वो मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, तो सिर्फ अपने दिल में इन्हें बसा लो और ज़ुबान से भी न कहो तो अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में आपकी मुश्किलें हल कर देगा। वो जिसकी ज़ात पे कायम है दो जहाँ का वजूद, कसम खुदा की यही एतबार काफ़ी है। और कहा कि विर्द अमल कैसे गंडाओ ताबीज़, हमारे वास्ते नामे मदार काफ़ी है। हाक अल्लाह मोहम्मद मदार कम मदार बेड़ा पार। जबलपुर का इतिहास ये रहा है मदार पाक की शान में कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद कुदुल मदार जिंदा समदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आबरी जबलपुर में सन 670 हिजरी मुताबिक 1249 को हुई। तो आप जहाँ भी चलते थे तो उनके साथ मुरीद चला करते थे। तो आप अपने एक मुरीद को
उसी जगह पे जहाँ चिल्ला करते थे आप, वहाँ छोड़ के फिर दूसरी तरफ दीन की तबलीग के लिए चल दिया करते थे। तो जबलपुर में जब आए 670 हिजरी मुताबिक 1249 में, तो पहले गढ़ा में किए आपने चिल्ला। तो आज रिकॉर्ड में तो हो गए जबलपुर के रिकॉर्ड में, तो पहली आबादी जबलपुर की गढ़ा बताई जाती है। तो वहाँ किए, फिर वहाँ से चिराग अली साहब के यहाँ, वहाँ भी एक चिल्ला है। फिर वहाँ से यहाँ तशरीफ़ आपकी हुई, यहाँ आपने चिल्ला किए। फिर जो बड़ा मदार चिल्ला बोला जाता है पहाड़ी के से, वहाँ पे आपने किए। फिर यहाँ से आप पाटन पनागर गए, वहाँ चिल्ला किए। फिर इंद्राना में किए। फिर इस तरीके से पूरी दुनिया में आपके चिल्ले हैं। सुभान तो अल्लाह। यहाँ पे जो जबलपुर में जो आप जहाँ जिस चिल्ले पे हाजिर हैं, यहाँ पे आपने अपने मुरीद खलीफा हजरत सैयद मथर किल्ला शेर रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ के गए आप। तो वहाँ से जो उनकी नस्ल चली आ रही 609वां उर्स मना रहे हैं आज। 22वीं पीढ़ी है हमारी गद्दी नसीन बाबा मोहम्मद कलीम साहब तकियादार, जबलपुर मध्य प्रदेश। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स अक़दस बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि आपको मुबारकबाद से ही ये बात समझ में आ गई होगी कि ये उर्स अक़दस है हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और 609वां सालाना उर्स हम मना रहे हैं। 609वां उर्स है, और इसमें जो हमारे यहाँ तकरीब होती है वो सुबह 9 बजे से ही कुरान ख़ानी का अहतमाम होता है, यानी शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद लंगर शुरू होता है, और उसके बाद फिर ज़ोहर बाद चादर शरीफ का जुलूस जो होता है, जो हमारे यहाँ मदार टेकरी कब्रिस्तान का ऑफिस है जो मंसूब है खानकाह मदारिया के नाम से, तो उस खानकाह मदारिया में से जुलूस की शुरुआत होती है। और ये जुलूस वहाँ से शुरू हो कर के बड़ी मदार टेकरी, हनुमान ताल, घोड़ा नक्कास और नानबद मोहल्ला, फिर मोती नाला, फिर मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान तक पहुँचता है। और ये चादर सिर्फ यहाँ से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जबलपुर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से शुरू होती है, जो कि एक मकाम मुकर्रर होता है, और उस मकाम मुकर्रर में तमाम हजरात आके शामिल हो जाते हैं और फिर मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान पहुँचते हैं। और मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान पहुँच करके यहाँ मदार चिल्ला शरीफ में आते हैं और नज़र न्यास का अहतमाम किया जाता है, और फिर बाद में तबर्रुक तकसीम किया जाता है, और सलातो सलाम और तमाम कुरान करीम की तिलावत और जो कुछ भी पढ़ा जाता है, तो वो नज़र न्यास का अहतमाम होता है। और अपनी बात को मैं इस बात से ही मुकम्मल करना चाहूँगा कि सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की, सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। अली बसरी हबीबो बायजीद हजरत बदियुद्दीन बहुत ही मुख्तसर सजरा मदारुल आलमी का है। सुभान अल्लाह। सुभान। आप तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे 3 मदार टेकरियों के नाम से आप जाने जाते हैं, बड़ी मदार टेकरी, मंडी मदार टेकरी, छोटी मदार टेकरी। तो हजरात, जैसा कि हमने चिल्ला मुबारक सैयदना बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदारुल आलमीन के चिल्ले मुबारक की ज़ियारत की है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़ा ही शानदार। और हमारे भाई जो हैं जनाब मदारुल हलीम साहब और हमारे चचा जो हैं जानसीन हैं और खादिम साहब भी हैं इस चिल्ले मुबारक के, बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर और साफ़ सफाई वगैरह, और देख रहे हैं आप चंगन मंगन है इनके रहने से। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। परवरदिगार इनको उम्र दराजी, सेहत और तंदुरुस्ती दे और इनकी उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं बुग़्ज़ मदारुल आलमीन में ये कहते हैं कि मदारुल आलमीन की उम्र मुबारक 596 साल कैसे हो सकती है, जबकि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर आप एक मोमिन से भी बुग़्ज़ रखते हैं तो आपके लिए जन्नत हराम हो जाती है। तो फिर हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा सा मदार, जो कि तमाम वलियों के सरदार हैं आप, और वलियों के सरदार से बुग़्ज़ रखना तो मतलब जन्नत तो कोसों कोसों दूर हो जाती है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। परवरदिगार आलम जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे जब तक ज़िंदा रखे, जब चाहे उसे मौत दे दे। जैसा कि आप देखते हैं फ़िरौन मर चुका है लेकिन लाश अब तक उसकी वैसे ही वैसी है, चूहे उसको खाते हैं फिर वैसे ही हो जाती है। ये एक इबरतनाक मंजर है। तो सैयदना बदियुद्दीन ज़िंदा सा मदार वो शख्सियत है, अल्लाह ताला को आपकी इबादत इतनी पसंद आई कि आपने 596 साल उम्र रख दी, और 596 साल तक आपने मतलब 40 साल के बाद से 556 साल तक आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। सुभान अल्लाह। तो
یہ بغض میں بالکل بھی ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی شان وہ ہوتی ہے جسے چاہے ولایت دے دے، وہ جس کو کہہ دیں وہ جنت میں جائے اور جسے کہہ دیں وہ جہنم میں جائے۔ تو بغض مدار العالمین میں آپ اپنے گناہ مت بڑھائیے اور اپنے آپ کو جہنم کا واسط نہ بنائیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے اور اپنوں کو بھی خوش رکھیے۔ اولیاء کاملین زندہ باد، اولیاء کاملین زندہ باد، عقیدت اولیاء زندہ باد، عقیدت اولیاء زندہ باد۔ السلام علیکم۔ بھائی یہاں پر جو ہے نا، دیکھو یہ ابھی بن چکا ہے شہن ٹائپ میں، یہاں پر بھی اور سے ہوتا ہے تو لنگر ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے ایسا نہیں رہا، یہ دیوار نہیں رہی، کھلا رہا، تو اب جو ہے چنگن منگن ہو گیا ہے، بنوایا گیا ہے اس کو۔ پہلے یہاں پر سیڑھی ہوا کرتی تھی بہت پہلے، لیکن یہ اس کو بند کر دیا گیا اور یہاں لینٹر ڈل گیا ہے۔ چلو یہ ہے جیلانی گیٹ نمبر 3، یہاں سے بھی آپ کو راستہ ملے گا حضرت سید بدی الدین زندہ سا مزار کے چلے مبارک کا۔ یہاں سے آپ بالکل سیدھے جانا ہے، آپ کو یہ سیڑھیوں کا راستہ ہے، سیڑھیوں سے بالکل سیدھے جائیں گے تو آپ چلے مبارک پہنچ سکتے ہیں۔